Yes. So the farmer has planted the rice plant, rice is here, rice is here. Okay, this is perfect situation. There is no issue in that. But what happened as farmer uses fertilizers in a very excess amount. So what will happen along with these are the called main plants. इसके साथ along with these main plants, there is also growth of unwanted plants like unwanted plant. These are unwanted plants. So what as they are also plants, so they will start these unwanted plant. Farmer is not intended to grow these plant actually. Farmer has interest only with these RRR. It's been rice only. Farmer is not very much actually concerned about these herbs. You can say unwanted plants, but they have impact on the main plant. How? Because they start competing with this rice plant for sunlight, for water, for fertilizers. So this is how this if farmer don't pay much attention to these things, what will happen? The crop yield reduces. Crop yield reduces. Why? Because these unwanted plant also actually start growing along with the main crops, so remaining rice crop may get damaged. They will not be able to grow properly because they will not get the proper nutritions, fertilizers, sunlight, so they'll die actually, right? So the farmer crop, and I would say crop yield has reduced because of this particular neglect of the unwanted plants. So to kill these plants, farmer uses herbicides to kill this plant. Farmer actually, now let's say now it is a herbicides. So farmer has used herbicides, so now it got killed. So there is no herbicides now. In a farm field only rice crop is there, and it will have a good crop yield. Understood, Alakhya? Yes, sir. Yeah, so this is a very common practice in the agriculture activity. Okay, so Sir, yeah. is this spread before the crops are? Along the crops actually, along the Oh, okay. they grow up actually. Have you been to the any farm field? You have seen that, I mean, many unnecessary unwanted crop grow along with the main crop, like wheat and rice are the main crop, for example. इसके साथ साथ small grasses or something like grow up. तो उसको हटाते हैं, हर्बिसाइड्स यूज करते हैं, तो ये अनवांटेड प्लांट को किल कर देता है. समझ में आया आप लोगों को? Yes, sir. It यस. is a type of chemical spread. Yes, it is a type of chemicals. Agar, so what happened when the farmer be able to use this herbicide resistant crop, then there is no use of herbicide obviously, because when farmer is going to market, he has to buy herbicides and it costs around 1,500 rupees, 2,000 rupees. So that now as the crop is herbicide resistant, so there is no need of this, so it will reduce the farmer input cost and will increase the income of the farmer. Understood? Yes, sir. ओके, अब हेल्थ में भी देखिए टिश्यू और देखो, और अभी काजल ने बताया था इनिशियल कि भाई ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में, टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन में काफी ज्यादा हेल्प है और कंट्रीब्यूशन हो सकता है किसका, जेनेटिक क्लोनिंग टेक्नोलॉजी का. सो ऑर्गन शॉर्टेज हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा है. लोगों के ऑर्गन्स आजकल जिस तरह का एनवायरनमेंट है, जिस तरह की कंडीशंस में हम लोग रह रहे हैं, दिल्ली या एनसीआर वाले लोगों की तो हालत खराब है पोल्यूशन वगैरह की वजह से. तो कई तरह की बीमारियां हो रही है अननेसेसरी, किडनी से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड, लीवर से रिलेटेड. तो अब देखेंगे, अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट वगैरह पे जाके देखो तो वेटिंग पीरियड देखोगे, इतना लॉन्ग वेटिंग पीरियड है. 10 साल, 15 साल, 20 साल का वेटिंग पीरियड है. अब किसी को किडनी चाहिए ट्रांसप्लांट ऑर्गन डोनेशन के थ्रू, बहुत लंबा लाइन है ही नहीं. और तो अब कैसे करें, लोगों की जान भी बचानी है, तो इसके लिए हम जीएनए जेनेटिक क्लोनिंग टेक्नोलॉजी का यूज करके ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं. ऑर्गन को हम इम्प्लांट कर सकते हैं, राइट? तो देखो कितना लाइफ ये, कितनी लॉस ऑफ लाइफ को रिड्यूस कर सकता है ये. ओके, दिस कुड हेल्प टू रिड्यूस द शॉर्टेज ऑफ ऑर्गन एंड टिश्यू फॉर ट्रांसप्लांटेशन. अंडरस्टूड? हेल्थ में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन. Reproductive cloning also. Okay, so cloning animals for conservation
प्रिजर्विंग इंडेंजर स्पीसीज, प्रोड्यूसिंग जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल, तो हमने देखा है। तो बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन में हम इसको यूज लिख सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी लाइक इंडेंजर एनिमल स्पीसीज के कंजर्वेशन में वी कैन यूज दिस क्लोनिंग टेक्नोलॉजी, राइट। तो आप लोग मुझे कोई बता सकता है कोई इंडेंजर एनिमल अभी, एनी एनिमल दैट इज इंडेंजर्ड? वल्चर्स। वल्चर्स आर इंडेंजर्ड, ठीक है। वल्चर्स नहीं मतलब ऑलमोस्ट, बिकॉज वो डाइक्लोफेनेक की वजह से ना, वो वल्चर्स ही है ना, डाइक्लोफेनेक की वजह से Yeah, गिरते yeah, हैं। exactly. That's right. Yeah, they are endangered. What else? और कोई एनिमल है जो इंडेंजर्ड है? ठीक है, तो लिखा। टाइगर, सर इवन टाइगर। राइनोसरस। राइनोसोरस, यस, इंडेंजर, एंड टाइगर इज आल्सो इंडेंजर। तो अब इनकी पॉपुलेशंस को बचाने के लिए वी कैन यूज द विच टेक्निक, genetic cloning technique, so we can make the copy of these animals and we can conserve their population and we can actually preserve and we can conserve and preserve their population, right? So that's also a very good। काश हमें पहले होता तो शायद हम डायनासोर को भी कंजर्व कर पाते पॉसिबल है क्या? सर फिर हमारा क्या होता? हाँ, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम नहीं रहते फिर, हम उनको उनको बड़े बड़े चिड़ियाघर में रखते हैं। बट वो हमने फिल्म में अभी डायनासोर को अभी तक हम लोगों ने देखा है तो मूवीज वगैरह में ही देखा है, शायद आप लोगों ने भी देखा हो जुरासिक पार्क वगैरह। तो उसके अलावा तो हम वैसे ही इमेजिन करते हैं कि कितने डेंजर होते हैं डायनासोरस। बट ऑब्वियसली आई मीन स्टिल वी हैव अ टेक्नोलॉजी वी कैन कंजर्व, लाइक अभी भी कई जगह ना जो डायनासोर्स के फॉसिल्स रिमेन्स मिलते हैं, जो उनके डेड रिमेनिंग पार्ट्स वगैरह मिलते हैं, जैसे एग मिल रहा है या कहीं। I have seen the dinosaurs structure and its bones in science museum. So I had went few days, like हो गया काफी दिन, तो I had went there, so I had seen। हाँ, तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रहा हूँ, जैसे अब डायनासोर आप लोगों ने देखा, उसका स्ट्रक्चर देखा ऑब्वियसली, तो उसमें से डीएनए अगर एक्सट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि डीएनए अवेलेबल है, डीएनए मिल जाएगा किसी भी पार्ट से, बॉडी के किसी भी पार्ट से डीएनए मिल सकता है, राइट। आपके हेयर से मिल जाएगा, आप अगर किसी ने स्पिट किया है तो उसके उससे भी मिल जाएगा, ब्लड वगैरह से भी मिल जाएगा, हेयर से मिल जाएगा, राइट। तो डायनासोर के अगर बोन का हमने यूज किया और उससे अगर हमने डीएनए निकाले उसके, तो थोड़ी बहुत रिसर्च वगैरह लगेगी, हम ना एक डायनासोर भी बना सकते हैं। ये जो जो जीन है, जो जेनेटिक स्ट्रक्चर था डायनासोरस का, उसको इम्प्लांट करेंगे, बट डिफिकल्ट है, आर्टिफिशियली इट कैन बी डन, नेचुरली इट इम्पॉसिबल। अब एक है बायोमेडिकल रिसर्च। बायोमेडिकल रिसर्च वही ड्रग्स बनाने में, वैक्सीन्स वगैरह बनाने में, आर्टिफिशियल ऑर्गन्स वगैरह बनाने में, जनरेटिंग एनिमल मॉडल्स विद स्पेसिफिक जेनेटिक ट्रेट टू स्टडी डिजीज एंड डेवलप न्यू ट्रीटमेंट्स। ओके, तो या सो वी कैन यूज दिस टेक्नोलॉजी, बायोमेडिकल रिसर्च वगैरह में हम यूज कर सकते हैं, जिससे नई नई बीमारियों के जो ट्रीटमेंट, नई नई ट्रीटमेंट पे हम रिसर्च डेवलपमेंट करके उनके बारे में ड्रग्स और ट्रीटमेंट के तरीके ढूंढ सकते हैं। ओके, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हमने डिस्कस कर लिया। सो टिश्यू एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में काफी ज्यादा इसका यूज है, जो ये रिपीट हो रहा है पॉइंट, इसको कट कर देना गाइस। ओके, लाइफ स्टॉक इम्प्रूवमेंट। सो लाइफ स्टॉक इम्प्रूवमेंट कैसे भाई? हम जैसे हमने बात भी किया था कि ऐसे बुफेलो या काउज हम बना सकते हैं जो ज्यादा दूध देती है और जिनमें इनपुट कॉस्ट कम है, क्योंकि अगर कोई फार्मर है, अगर उसने बुफेलो रखा हुआ है या काव रखा हुआ है, तो टाइप्स ऑफ काउज होते हैं, टाइप्स ऑफ बुफेलोज भी होते हैं। लेकिन एक स्पेशलिटी, कैन एनीबडी टेल सम सॉर्ट ऑफ स्पेशल फीचर अबाउट इंडियन काउज, इंडियन गाय के बारे में? एनीबडी कैन शेयर एनी इंफॉर्मेशन, कुछ यूनिक चीजें इंडियन गायज के बारे में, इंडियन काउज अलग क्या? और लेट मी टेल यू वन फैक्ट, हमने कई सारे देशों को इंडियन काउ क्या क्या एक्सपोर्ट किया है। प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज गिफ्टेड इंडियन काउज टू रवांडा, केन्या, ब्राजील ऑल्सो। कुछ स्पेशल बातें इंडियन काउज के बारे में, एनीबडी नो दैट? इंडियन काउज, या बस दूध ही आई पीते हो थिंक आप? सर क्वालिटी ऑफ मिल्क।
क्वालिटी ऑफ मिल्क, ओके यस, क्वालिटी ऑफ मिल्क, यस बोल सकते हो। A2 होता है ना, A2 वाला मिल्क, ये तो बात है, सही बात है ये। और हमारी इंडियन गाय ना उतनी दूध नहीं करती, तो मिल्क कैपेसिटी उतना है ही नहीं एक्चुअली इंडियन काउस का। बट अच्छी बात क्या है इनके बारे में, क्योंकि दे कैन लिव इन एनी काइंड ऑफ क्लाइमेटिक एंड वेदर कंडीशंस। उनको एसी की जरूरत नहीं है, उनको ठंडे कूलर वूलर ऐसी की जरूरत नहीं है, धूप में भी रह सकते हैं, ड्राउट वाली कंडीशन में भी रह जाते हैं, उनको बीमारियां नहीं होती ज्यादा, राइट। तो काफी सस्ता, मतलब सस्ते में मैनेज हो जाने वाली काउज वगैरह है हमारी, राइट। तो दैट्स अ स्पेशल थिंग अबाउट इंडियन काउज। और हमारे यहाँ पे जैसे काकरा, झोर एंड भी कई तरह की गाय है। जर्सी गाय जो है हमारी इंडिया की जर्सीज गाय नहीं, यूरोपियन कॉन्टेक्स्ट की जर्सीज गाय। जर्सी गाय आपने सुना होगा, जर्सीज गाय जर्सी गाय देखा है किसी ने? हैव एनीबडी सीन दिस जर्सी गाय? यस या, आप लोगों ने नहीं देखा क्या भाई? प्रियंका, अलख्या, आकांक्षा, आकांक्षा। नो सर। ओके आई विल शो यू अभी, सो आप दिखाता हूँ मैं ऑनलाइन। आकांक्षा आपने देखा है क्या जर्सी गाय? प्रियंका? Sir, I think I have seen somewhere on. चलो मैं अलख्या को दिखाता हूँ जर्सी गाय। सर यहाँ यस सर। दिल्ली में तो बस वही नीलगाय दिखते हैं जेएनयू कैंपस की तरफ, और वो जो स्ट्रीट वाली होती है। यस यस यस, सर जर्सी तो नहीं, साहिवाल देखी है। साहिवाल, ये साहिवाल भी काव है। इनमें सींग नहीं होती इनमें ना, जो देखो या दीज आर द जर्सी गायस। अलख्या, आपके यहाँ तेलंगाना में एक छोटी गाय मिलती है, छोटी किस्म की गाय, उसका नाम याद नहीं आ रहा। हैव यू सीन अ स्मॉलर काउ? सर बेबी का हूँ। नो दैट्स, वो छोटे काव है, मतलब उनका साइज ज्यादा बड़ा नहीं होता, लाइक 1 मीटर के आसपास या उससे भी कम होता है। ये जर्सी गाय, दीज आर द जर्सीज गाय। इनको रियर इसलिए किया जाता है क्योंकि इनकी मिल्क कैपेसिटी ज्यादा होती है। इंडिया से स्मॉलेस्ट काव मैं दिखाता हूँ आपको, आप लोगों ने देखा होगा। सर आई थिंक हम्म, बोलो क्या बोल रहे हो आप? Yes, yeah. This one India smallest cow. You see here. Let me show you the video. The very you see these are इतना इनका साइज बढ़ता नहीं, इतना ही बड़ा रहता है, ये ज्यादा बड़, इसको बोलते हैं हाँ पंगनौर काउस। सो दीज आर स्मॉलेस्ट काउ ब्रीड्स, को घर में भी रखा जा सकता है। दीज आर वेरी स्मॉल। अलख्या, ये आपके तेलंगाना रीजन से ही आते हैं, आपको मालूम है? डू यू नो अबाउट इट, मिनी काउस? ये देखो, ये गोट की जितना है, गोट से, यू सी द गोट एंड दिस काउ। सर मिनी काउज आर डिफरेंट एंड बेबी काउज आर डिफरेंट सर। Babies cows are different, these are not babies, they are adult, their size is this much only. लाइक ड्वार्फ काउज सर। You can say dwarf cow, but they are I mean their genetic structure is like that. I mean their height doesn't increases, I mean their height not increases, they are naturally they are no short. Let me show you the video, just give me 1 minute guys, video दिखा देता हूँ आपको। जिन्हें आप गाय के छोटे बछड़े समझ रहे हो, ये दुनिया की सबसे छोटी गाय की प्रजाति है, जिन्हें पुंगनूर के नाम से जाना जाता है, और ये सिर्फ इंडिया के आंध्र प्रदेश में ही पाई जाती है। पुंगनूर गाय की तेलंगाना हाइट बस also 2 से 3 फीट ही होती है और इनका वजन 100 से 120 किलो तक होता है। ये गाय कम खाना खाती है पर रोज 2 से 3 लीटर दूध देती है, जो नॉर्मल गाय के मुकाबले ज्यादा हेल्दी और न्यूट्रिशियस होता है। ये गाय देखने में जितनी क्यूट लगती है उतनी ही महंगी भी है। एक पुंगनूर गाय की कीमत 5 लाख रुपए होती है। जिन्हें आप गाय के छोटे बछड़े समझ बस, समझ में आप लोगों को? सो दिस यस इज ऑल्सो, सर।
या आई मीन आई होप यू अंडरस्टूड। ये एग्जाम के कॉन्टेक्स्ट से भी इम्पोर्टेंस है, प्रीलिम के हिसाब से, सो मैंने आप लोगों को दिखा भी दिया ये। तो ये है सारी चीजें, लाइफ स्टॉक इम्प्रूवमेंट। तो हमें अपने ऐसे हम कुछ ऐसे जीन इंट्रोड्यूस कर सकते हैं हमारे अपने कैटल्स में, हमारे बफेलो हो या काओ, जिनमें उनको डिजीज रेसिस्टेंट हो, उनको फंगल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो, उनकी मिल्क कैपेसिटी बढ़े। तो वी कैन यूज दिस लाइफ स्टॉक इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। तो आजकल जो यूएस वगैरह में है या यूरोपियन कंट्री में क्या होता है, एनिमल रियरिंग का बहुत ज्यादा कल्चर है वहाँ पे, एनिमल हस्बेंड्री का बहुत ज्यादा कल्चर है, बहुत वेल डेवलप्ड इंडस्ट्रीज है इन यूरोपियन कंट्री एंड ऑल्सो इन द यूएसए। सो दे यूज दिस cloning technology, they use this biotechnology to improve the meat and also the milk of the cattle। स्पीसीज रिवाइवल, तो हमने जैसे आई वाज जस्ट टॉकिंग अबाउट डायनासोरस के रिवाइव करने में। सो स्पीसीज रिवाइवल, so it is possible reviving extinct species by cloning using preserved DNA, right? But it is difficult, I mentioned, and ethically complex। तो समझ में आपको क्लोनिंग, सॉरी थोड़ा सा कफ है तो आवाज में आप लोगों को थोड़ी दिक्कत हो रही होगी। तो क्लोनिंग, एवरीबडी अंडरस्टूड द क्लोनिंग? Yes, sir. Now we have some sort of ethical concern with respect to cloning also. So first of all, we have potential for abuse. Cloning could be used to create clones of people without their consent. This could be used for unethical purpose, creating clone for military and commercial uses also. So one of the most concerning thing about the cloning is, potential use of potential misuse of the cloning technology. For example, जैसे किसी पर्सन का क्लोन बनाया जा सकता है, किसी बच्चे का क्लोन बनाया जा सकता है, मिलिट्री पर्पज से क्लोन बनाया जा, जैसे मिलिट्री, यू अंडरस्टैंड, इट्स अ वेरी, there is a loss of life during the war in military kind of thing, so we can actually make a clone of military personals. So but it is also unethical. So this is also without asking consent, making a clone of a person become difficult and also very unethical, right? Potential for the harm to clones. Clone may be at increased risk of health problems. This is because clones are genetically identicals, and any genetic defect in original organism could be passed on to clone also. So जो क्लोन्स ऑर्गेनिजम्स बनाएंगे, जैसे हमने डोली शिप बनाया या कोई और स्पीसीज का हमने अगर क्लोन किया, तो कोई बीमारी अगर होती है ओरिजिनल वाले में, जैसे पहले से कोई बीमारी है, तो क्लोन में भी पास होगा। जेनेटिक डिसऑर्डर हमने देखा था ना, इफ ओरिजिनल ए स्पीसीज जिसका हमने क्लोन बनाया उसमें कोई पहले से बीमारी है, तो दैट कैन ऑल्सो पास टू द क्लोन वन। सो दिस इज ऑल्सो अ इम्पोर्टेंट थिंग। Potential for devaluing human life also. Cloning could lead to the devaluation of human life. If clones are seen as a less than human, it could lead to the discrimination and abuse also. Okay, so what happened, I mean, अगर क्लोन को हमने कमर्शलाइज कर दिया, जो ह्यूमन लाइफ, जो इतनी वैल्यूएबल लाइफ है, प्रीशियस लाइफ बोलते हैं ह्यूमन लाइफ के कॉन्टेक्स्ट में, तो ह्यूमन लाइफ और इसकी प्रीशियसनेस रिड्यूस हो जाएगी, राइट? And then there will be issue of discrimination, and human will start treating each other as a any material, non-material and non-living thing. So this is also a very concerning thing. Loss of individuality, ये भी होगा, क्लोन बना दिया तो what about the individual person, right? So that's also a concerning thing. So cloning raises concern about loss of individuality and uniqueness, as clones are exact copy of the original one. So there will not be the game of individuality. I mean, हम आपको यहाँ पढ़ा रहे हैं, हमारा क्लोन कहीं और लेट्स से कहीं वर्किंग काम कर रहा है या कहीं बिजी है किसी और काम में, तो दिस हैव सम सॉर्ट ऑफ कंसर्निंग थिंग। एक्सप्लोटेशन एंड कमर्शियलाइजेशन, सो ऑब्वियसली अगर कमर्शियलाइजेशन होता है तो देयर विल बी एक्सप्लोटेशन ओनली, राइट? सो देयर आर कंसर्न अबाउट द पोटेंशियल एक्सप्लोटेशन ऑफ क्लोन्स फॉर commercial purpose, including unethical practices like human clone for reproductive purposes, or exploitation in industries such as entertainment and organ transplantation. So these are some sort of concerning thing with respect to the cloning project, right? So cloning is important, but its uses, its application, I mean, and must be regulated and must have some sort of proper comprehensive setup, so that its misuse or obviously the unintentional use for the wrong purpose could not be done, right? So that's why we need to have a regulation for it. Agriculture, we have understood the some sort of very good application of the cloning technology in the field of agriculture, revival of the extinct species,
conservation of biodiversity, and the healthcare, organ transplantation. So these are some sort of very good application of the cloning. But again, every technology has pros and cons. It's depend on the person. But we understand humans are selfish and obviously self-interested. So when it's come to the commercialization of any such technology, it will have a far repercussion, and definitely there will be impact on the society and the life of everybody. So this is all about the cloning. I hope you people have understood. किसी को समझ everybody understood this cloning? Sir, Yes, sir. can you once tell about the somatic cells, sir? Yeah, so actually somatic cells are very important cells. It is found in our body actually. So we have different type of cells. So these are the initial cells, and through these cells, different organs inside the human bodies actually generate, or you can say develop. For example, development of liver, heart, kidney, these all actually generate from the somatic cells. Somatic cells have a ability to differentiate into different cells. Okay. So somatic cell is the only cell that has ability to differentiate into different type of cells and further into the tissue and then the organ actually. So we have somatic cell kind of a system. So in context of the cloning, we can actually make the clone of the organism or a species by using somatic cell nuclear transfer technology. So in that, we actually transfer the nuclear of the somatic cells to the surrogate mother, and then it fertilized with the egg, and the offspring is exactly the same copy. And it is most common technique, or you can say technology of cloning. Understood, Alakya? Yes, sir. Yeah, that's called somatic cell transfer. And another, we have embryonic cell. Embryonic cells are actually, we generate embryonic cell from the somatic cells, right? Because somatic cell has the ability to differentiate, but embryonic cell doesn't have ability to differentiate into different cell actually. So this is another way through which actually we can clone a person or clone a organism. इसके काफी ज्यादा एप्लीकेशन है सोमेटिक सेल्स के, और आपके बाद स्टेम सेल भी आते हैं हमारे पास. Sorry, stem cell is a kind of thing related to somatic cells also. Okay, somatic cells are important. Okay, so yeah, we have this stem cells की बात करें तो stem cell are specialized cells, ability to evolve into different type of cells as I was talking in the body, and act as a continuous repair system that replenishes other cells throughout the organism's lifespan. So somatic stem cells के काफी ज़्यादा, there is number of application and research and development is going on in the field of stem cells, because it has a vital application in the field of medical technology. Healthcare field में it has a number of applications, especially development of a organ, and addressing some sort of genetic disorder and some sort of organ failure kind of a thing. So it has a number of applications, stem cells. So we have embryonic stem cells. So these are actually derived from the embryos, and they are pluripotent, meaning they can turn into more than one type of cells only. And we have adult stem cells found in adult tissues. These cells are limited in their ability to differentiate, but are used to replace cells that are lost through the normal wear and tear and injury. That's not a very important thing. इतना ध्यान रखो, somatic cells, sorry, stem cells are special cells that has the ability to differentiate into different cells. And further, when we divide the stem cells, we have two types: embryonic stem cells, it is also called pluripotent cells, and then we have adult stem cells. That's it. Okay, now we have to understand some sort of application of the stem cell technology. So it uses stem cells to repair damaged tissues and organs. So as I was talking about, many time there is a medical issue जहाँ पे ना organs खराब होने लगते हैं, जैसे liver खराब होने लगा या kidney में कुछ issues होने लगा, तो अब उसको ठीक कैसे कर सकते हैं? ये एक ऐसी technology है, stem cell therapy. By using the stem cell therapy, we can actually address the organ failure, or I mean malfunctioning of any tissues of the human body. Okay, treat various diseases including blood disorders, certain cancers. Okay, some sort of characteristic of the stem cells are perpetual self-renewable. So stem cell, this unique ability, what is that? परपेचुअल सेल्फ रिन्यूएबल. सो एक बार हम ये ना हमेशा डिफरेंशिएट होते रहते हैं, एक बार ये बना, फिर ये बना, फिर ये बना.
सो दिस इज अ वेरी गुड। जैसे हमारे बॉडी के अंदर एवरी डे इन आवर बॉडी बिलियन millions of cells die and millions of cells actually develop inside our body, and in all that we have application of stem cell technology inside our body. So ability to differentiate into specialized adult cell type. Stem cells transplant are used to treat variety of disease like leukemia, lymphoma, melanoma, aplastic anemia, anemia, sickle cell disease. So these are cancer. Leukemia, lymphoma हमें लंग्स कैंसर को बोलते हैं लाइम्फोमोमा। ल्यूकेमेनिया ब्लड कैंसर है आपका। माइलोनोमा स्किन कैंसर है। एप्लास्टिक एनीमिया ब्लड से रिलेटेड है। सिकल सेल एनीमिया एवरीबody अंडरस्टैंड्स ब्लड कैंसर। Okay, so we can use this stem cell technology in addressing these very dangerous disease. Okay, we have types of stem cell transplant. So एक है autologous stem cell transplant. These are not as such important because in such detail UPC actually doesn't go. These are a bit technical thing, but to understand what is stem cell or iske technique, these are not important. But you can go through. If anybody interested in stem cell, then they can go and do further study about it. But let me tell you, and autologous stem cell transplant, इसमें होता है क्या है, patient stem cells taken from the bone marrow or you can say or blood are saved before a treatment that destroy the blood cells. Post treatment, there these cells are reinfused into the patient at recovery. So इसमें हम क्या करते हैं, स्टेम सेल निकालते हैं बोन मैरो से या ब्लड से और उसको फिर स्पेशलाइज तरीके से पेशेंट में दोबारा जो हमें रिक्वायरमेंट चाहिए होता है उसको मॉडिफाई करके हम दोबारा इन्फ्यूज करते हैं पेशेंट के अंदर। जैसे कोरोना वायरस के टाइम पर एक थेरेपी होती थी, ब्लड थेरेपी। कई सारे लोग जिनके अंदर एंटीबॉडी बन गई, उन लोगों से ब्लड लेके उनका डोनेट करते थे। उनसे उन डोनेटेड ब्लड से हम पर्टिकुलर एंटीबॉडीज निकाल के इम्प्लांट करते थे जो जिन लोगों को बीमारी हुई थी कोरोना वायरस। तो ये भी इस ऐसे ही ये टेक्नोलॉजी है। तो इसके फायदे क्या हैं देखो, रिलीफ पेन एंड इन्फ्लेशन, ऑटोलोगस ट्रीटमेंट होता है, लेस साइड इफेक्ट है इसका, मिनिमल इन्वेजिव है, शॉर्टर रिकवरी टाइम इसकी रिक्वायरमेंट है। तो एक काफी ज्यादा इम्प्रेसिव और ऑब्वियसली रिजल्ट ओरिएंटेड मेडिकल ट्रीटमेंट ये एक देता है। एक है ओलोजेनिक। ओलोजेनिक मतलब डिफरेंट। अब ऑटोलोगस स्टेम सेल हमने देखा था कि पर्सन जो पेशेंट है उसी से ही निकालते हैं हम स्टेम सेल और उसको मॉडिफाई करके इम्प्लांट करते हैं और फिर वो जनरेट करता है अपना इफेक्ट। बट ओलोजेनिक में देखो क्या होता है, ट्रांस स्टेम सेल आर डोनेटेड फ्रॉम मैच डोनर। तो इसमें हम उस पर्सन से नहीं बल्कि दूसरे पर्सन का हम स्टेम सेल लेते हैं, वो डोनेट करता है और उसको फिर मॉडिफाई करके जो पेशेंट है उसके अंदर लगाया इम्प्लांट किया जाता है और फिर जैसे ल्यूकेनोमा, एप्लास्टिक एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, इनको एड्रेस किया जाता है। अब इसके देखिए एडवांटेज क्या है स्टेम सेल के ओवर अदर ट्रीटमेंट। पहला है स्पेसिसिटी एंड प्रिसीशन। प्रिसीशन मतलब काफी स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी। अगर किसी को लेट्स से एप्लास्टिक एनीमिया है तो इस पर्टिकुलर डिजीज को एड्रेस करने के लिए अगर हम स्टेम सेल का हम यूज करते हैं तो ये काफी इफेक्टिव होगा और स्पेसिफिकली कम टाइम लेगा और इसका जो रिजल्ट रहेगा काफी अच्छा रिजल्ट रहेगा। तो बोल सकते हैं स्पेसिसिटी अच्छी है इसकी और प्रिसाइज है, एकदम सटीक जगह पे वार करता है। इट अटैक ऑन द डैमेज पार्ट एंड इन्फेक्टेड पार्ट। बाकी एक होता है कीमियोथेरेपी। देयर आर एक थेरेपी होता है कीमियोथेरेपी। कैन एनीबॉडी एक्सप्लेन व्हाट इज कीमोथेरेपी? सर बेसिकली कीमोथेरेपी जो है वो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए दी जाती है। सर बेसिकली इसमें क्या होता है, कुछ रेडिएशंस के थ्रू मतलब ट्रीटमेंट किया जाता है इसमें। हाँ और सर बट इसके ना कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं काफ़ी सारे, कि बाल झड़ जाते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। बट सर इससे क्या होता है, जो कैंसर सेल्स होती है वो एक तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है वो, और जिससे बिल्ड और ज़्यादा बन ना पाए। तो इससे सर कैंसर का ट्रीटमेंट होता है बेसिकली। हाँ बिल्कुल। अब मैंने इसलिए पूछा क्योंकि जब कीमोथेरेपी देते हैं ना किसी पर्सन को तो इट कीमोथेरेपी फेल टू डिस्टिंग्विश
which which kind of cells are good और which kind cells are bad, वो यूनिवर्सली सारे सेल्स को अटैक कर देता है। सो जो कैंसर वाले सेल है वो भी मरते हैं, और जो नॉन कैंसरस सेल है, जो हेल्दी सेल है, वो भी मर जाते हैं, राइट। तो इससे बॉडी काफी ज्यादा वीक हो जाती है। अगर ऐसे लोगों को जिनको कीमोथेरेपी होता है, काफी ज्यादा प्रिकॉशंस लेना पड़ता है, क्योंकि अगर हल्का सा भी कुछ इन्फेक्शन हुआ तो उनकी लाइफ काफी खतरे में आ सकती है। तो क्योंकि कीमोथेरेपी काफी ज्यादा पेनफुल होता है और हेल्दी सेल को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। तो अगर हम स्टेम सेल टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, लाइम्फेनोमा या मेलेनोमा, यानी स्किन कैंसर या लंग कैंसर को एड्रेस करने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए, तो ये सीधा उन्हीं कैंसरस सेल्स, जो लंग कैंसर में जो इन्फेक्टेड कैंसरस सेल है उसी को ही अफेक्ट करेगा, उसी को ही जाके किल करेगा, बाकी दूसरे हेल्दी सेल्स को किल नहीं करेगा। इसलिए स्पेसिसिटी है, प्रिसाइस है ये। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? Yes, so leukemia treatment with a stem cell therapy offer more tailored approach by the replenishing the bone marrow with the healthy cells. एक एग्जांपल है रिड्यूस साइड इफेक्ट। कीमोथेरेपी के बहुत साइड इफेक्ट होते हैं, बाकी इसके उतने ज्यादा साइड इफेक्ट्स नहीं होते। पोटेंशियल फॉर ट्रीटिंग प्रीवियसली इनक्योरेबल डिजीज, तो कई सारी ऐसी बीमारियां जो इनक्योरेबल है, जैसे थैलेमेसिया, अल्जाइमर डिजीज पता है किसी को अल्जाइमर डिजीज क्या होता है, या पार्किंसन डिजीज? सर अल्जाइमर आई थिंक स्किन से रिलेटेड डिजीज होती है। स्किन रिलेटेड यू आर टॉकिंग अबाउट? आई थिंक सर, बट सर वो दूसरी होती है अल्जाइमर आई थिंक सर, जो बड़ी एज के जो लोग होते हैं उनको भूलने की बीमारी आई थिंक। हाँ, आप सही, आप सही बोला आपने। अल्जाइमर या पार्किंसन डिजीज ऐसी बीमारियां होती है जिसमें ना हमारी जो ब्रेन के न्यूरॉन्स हैं वो अपनी एबिलिटी रिड्यूस करते जाते हैं, ब्रेन के न्यूरॉन सेल्स खत्म होते जाते हैं। तो लोगों को ना भूलने की बीमारी हो जाती है, कि भूलने लगते हैं चीजों को लेके, राइट। तो ये अल्जाइमर या पार्किंसन डिजीज, ये ना जनरली जैसे पर्सन एजिंग बढ़ती है, पर्सन के अंदर ओल्ड एज होता है, तो देखते हैं ओल्ड एज वाले लोग जो ओल्ड होते हैं दे स्टार्ट फॉरगेटिंग द थिंग्स। तो अल्जाइमर मतलब जो हमारे जो ब्रेन वाले जो सेल्स हैं, न्यूरॉन्स, वो रिड्यूस होने लगते हैं, राइट। तो अब ये कई सारे लोगों को, आज जैसे यंग लोग हैं उनको भी अल्जाइमर हो गया, पार्किंसन डिजीज हो गई। ये धीरे धीरे स्लो स्लो डेथ है आई वुड से, बिकॉज धीरे धीरे ब्रेन के सेल्स वीक होते जाते हैं, खत्म होते जाते हैं, और पर्सन एक टाइम आता है पर्सन एक्चुअली हैव अ ब्रेन डेड काइंड ऑफ सिचुएशन। सो इट्स अ वेरी डेंजर, एंड इसकी अभी कोई दवाइयाँ भी नहीं है अल्जाइमर डिजीज की या पार्किंसन डिजीज की, काफी कंसर्निंग है। और इसकी ट्रीटमेंट काफी कॉस्टली होती है, बट पूरा इनक्योरेबल है ही नहीं कोई, मतलब देर इज नो एनी ट्रीटमेंट एंड मेडिसिन अवेलेबल टू क्योर दिस। तो बट स्टेम सेल टेक्नोलॉजी का यूज करके हम इस सेल्स को ही, ऐसे जो डेंजर वाले सेल हैं जिनकी वजह से बीमारी है हमारे अंदर, उसको हटाया जा सकता है और हेल्दी सेल को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। तो देखो मेडिकल फील्ड में कितना हेल्प इसका वो है, हेल्प है। एग्जाम्पल में देखिए, थैलेमेसिया पेशेंट्स ऑफन रिक्वायर रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। स्टेम सेल थेरेपी addresses the root cause and tries to restore the body ability to reduce healthy blood cells। तो एक थैलेमेसिया बीमारी होती है जिसमें ना ब्लड क्या होता है, बार बार चेंज करने होते हैं लोगों को बॉडी के अंदर से, क्योंकि एक ब्लड कैंसर तरह का बीमारी होता है ये। तो इसमें हम स्टेम सेल टेक्नोलॉजी का हम यूज करेंगे, तो ये रूट कॉज पे ही जो हमारे जो ब्लड सेल जो डिफेक्टेड बॉडी प्रोड्यूस कर रही है उसको एड्रेस करेगी। ब्लड, हमारी जो बॉडी है, बोन मैरो के अंदर ब्लड डेवलप होता है, राइट। वो ब्लड हमारा एकदम हेल्दी ब्लड को डेवलप करेगा और जनरेट करेगा, इन्फेक्टेड को नहीं। टिश्यू रीजनरेशन में, टिश्यू मतलब जो टिश्यू हमारे बॉडी के अंदर है, तो टिश्यू रीजनरेशन में भी काफी ज्यादा हेल्पफुल है हमारे स्टेम सेल टेक्नोलॉजी का। जैसे स्टेम सेल कैन पोटेंशियली हील एंड रीस्टोर फंक्शन टू सीवियरली बर्न्ड स्किन और डैमेज कॉर्निया व्हाइल ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट फेल। जैसे बर्निंग के कई सारे केसेस आते हैं जिसमें हमारी स्किन डैमेज हो जाती है, तो ऐसे केसेस में स्किन को दोबारा जनरेट किया जा सकता है स्टेम सेल थेरेपी के थ्रू। ड्रग डेवलपमेंट में यूज किया जा सकता है, कैसे? हार्ट सेल्स फ्रॉम द स्टेम सेल्स कैन स्ट्रीमलाइन द ड्रग टेस्टिंग फॉर द हार्ट डिजीज and reduce the animal testing and enhance the development efficiency। So heart cells from stem cells से जो हमने heart cells बनाया है, तो we can actually utilize some sort of new drugs, we can do the drugs treatment, drugs testing also on that, so it has number of applications, right। अब देखो एप्लीकेशन तो है, बट इसके साथ साथ इसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत ज्यादा है। इन्फेक्शंस का खतरा हो सकता है,
ऑर्गन डैमेज हो सकता है। ऐसा नहीं है कि भी जो ऑर्गन हमने बनाया है या जिस स्टेम सेल थेरेपी से ऑर्गन को के अंदर जो प्रॉब्लम था उसको एड्रेस किया है वो 100% सही होगा, उसके अंदर इन्फेक्शन हो सकता है, राइट। इसके अलावा वी कैन ऑल्सो सी इनफर्टिलिटी हो सकती है। स्टेम सेल ट्रांसप्लांट प्रोड्यूस procedure may lead to infertility or reduce fertility in some patient also. So infertility can also be one of the outcome. Gastrointestinal issues भी हो सकते हैं, पेट से related भी कई तरह की problems हो सकती है persons को, right? So this is all about the stem cell technology, and thereafter we have CAR-T सेल थेरेपी कैंसर वगैरह में यूज होता है। इसको मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट क्लास में। ये थोड़ा मेडिकल जैसा है तो नहीं लग रहा आपको ना कि भाई मेडिकल की क्लास हो रही है, ऐसा तो नहीं लग रहा ना? मैं उतना टेक्निकल नहीं बताना, No, sir. अवॉइड कर रहा हूँ। आर यू अंडरस्टैंडिंग प्रियंका, अलख्या, आकांक्षा Yes, का? sir. ओके, तो आप लोग डिड Yes. यू फाइंड इंटरेस्टिंग गाइस? डिड यू फाइंड इंटरेस्टिंग दिस टेक्नोलॉजी, Yes, बायोटेक्नोलॉजी? sir. Yes, so it has a number of application and still number of research and I mean innovations are going on, and with respect to this biotechnology, as it is a kind of field which has number of applications, and because of the biotechnology we are able to increase our self life. I mean biotechnology की वजह से ही we are able to develop new treatment, new drugs, new vaccines, and this has actually increased our lifespan. Otherwise our lifespan would have been very small. Don't you think that, guys? Yes, आप लोगों को लगता है कि भाई बायोटेक्नोलॉजी की वजह से हमारी लाइफ स्पेन बढ़ी है? आपको ऐसा किस किस को लगता है कि भाई बायोटेक्नोलॉजी की वजह से इट्स बिकॉज ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी आवर लाइफ स्पेन हैज इंक्रीज? हाउ मेनी ऑफ यू पीपल थिंक लाइक दिस? नोबडी थिंक दिस? क्या हुआ आप लोगों? यस सर। यस, आकांक्षा आपको ही लगता है? यस सॉरी, सर, मुझे लगता है। यस, आयुषी आपको लगता है? और किसको Yes, sir. लगता है? यस सर। बप्पा, आकांक्षा, अलख्या, प्रियंका, काजल, आप लोगों को भी लगता है क्या? कि काजल को भी लगता है? Yes, यस। sir. Yes, sir. I Yes, sir. also feel like Yes, it. it's a Yeah. revolutionary and evolving technology, and day by day we are getting benefit of it actually. जितना research and development हो रहा है उसका benefit आ रहा है, and that's why Government of India has understood the importance of biotechnology, and therefore we have a dedicated department of biotechnology that sits in the Ministry of Science and Technology, a Ministry of Environment and Climate, sorry, Ministry of Science and Technology. It sits in the Ministry of Science and Technology. So very dedicated department, and Government of India fund the different research and innovation project on it, right? And there are also number of studies, number of educational, I mean university that has actually come up. They are imparting very advanced biotechnology kind of education in India. Like we have IITs, Indian Institute of Technology. They are offering MSc in biotechnology, research in the biotechnology field, PhD in the biotechnology. We have different fields in the biotechnology. We have somebody can make career in genetic engineering, somebody can make career in the genetic cloning, somebody can make career in stem cell technology. So it's a very evolving technology. uh, I was a student of biotechnology. I have studied this biotechnology, so that's why I'm mentioning. So this is how we have actually understood this biotechnology. अब आगे और हम देखेंगे भी, and in next class we will be understanding some further amazing application of the biotechnology as well. So if anybody have any doubt can ask the question, or should I conclude the class, guys, today? Yeah. Yes, sir. Okay, so nobody have any questions? Okay, so then I'm concluding the class. We'll meet tomorrow, guys. Till then, just keep revise what we have studied till now. Yeah, I'll share the notes. I'll share to the sir, and sir will share with all of you. Thank you, sir. Okay, Good night. thank you all of you for your Thank you, sir. participation, and take care and good night to all. Thank you, sir. Good night. Good night.